پبلک اسکول کی سالانہ تقریب نبیل گبول ہال لیاری میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر اسکول کے طلبہ و طالبات، والدین اور اساتذہ ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان کے علاوہ تعلیم اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات بھی بڑی تعداد میں موجود تھی، جن کو اسکول کے پرنسپل ناصر علی بلوچ نے خوش آمدید کہا۔ ان مہمانوں میں طارق شاہ صاحب، انور علی بھٹی، دوست محمد دانش، حبیب حسن، زبیر بلوچ، افتخار احمد، محمد عارف، ملک محمد خالد ایوان، میر غلام علی بلوچ قابل ذکر تھے۔ اس سالانہ تقریب میں اسکول کے بچوں نے بڑے خوبصورت ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین محفل سے داد حاصل کی۔ جو بچے پوزیشن ہولڈر تھے ان میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بچوں کے مزید حوصلہ افزائی کو بڑھانے کے لیے بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ان بچوں کو دیا گیا جو بچے اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا اور اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ اساتذہ جو پورے طریقے سے لیاری کے مستقبل کے معماروں کو ایک نئے سرے سے مضبوط اور قابل انسان بنانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان اساتذہ کو بھی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جبکہ اس موقع پر اس سال پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات میں انعام بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ میں نور، پلک نیوز، کراچی۔ آج بچوں کا عید کا دن ہوتا ہے، رزلٹ والے دن۔ میں فوسٹر پبلک اسکول کے تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر ناصر بلوچ صاحب کو۔ ان کی خدمات جو ہے نا 17-18 سال سے یہاں رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن پیرنٹس کے لیے بھی ایک عید کا دن ہوتا ہے، بچوں کا یہ بھی عید کا دن ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے پروگرام لیاری میں ہونے چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہر اسکول والے کرتے ہیں اپنے بساط کے مطابق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے۔ میں تمام پیرنٹس، ٹیچرز اور تمام ان اسکول کے اداروں کے لوگوں کو ایک پیغام یہ دوں گا کہ یہ دور چینج ہو چکا ہے۔ اب دور وہ نہیں رہا کہ رٹا پہ بچوں کو رکھو، پڑھاؤ۔ اب دور ہے سکھاؤ۔ کمپیوٹر کا دور آ گیا، جدید دور آ گیا۔ بچہ کمپیوٹر ہاتھ پہ لے کے گھوم رہا ہے، موبائل، اس میں سب کچھ ہے۔ جب تک آپ سکھاؤ گے نہیں، اب بچے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو لہٰذا میرا پیغام ہے آج کے موقع پہ کہ آؤ بچوں کو سکھائیں، اس کی صلاحیتوں کو باہر نکالیں۔ آج جو فوسٹر پبلک اسکول نے اتنا شاندار پروگرام انعقاد کیا ہے، اس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ناصر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ بچوں کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز آرگنائز کرنی چاہیے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ بچے جنہوں نے انعامات لیے ان کو بھی مبارکباد دوں گا میں۔ ایون اساتذہ کو بھی اپریشیٹ کیا گیا، کیونکہ پورے سال جو بچے محنت کرتے ہیں، ایون اساتذہ محنت کرتے ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ سیریمنیز ہونی چاہیے تاکہ آگے جا کر بھی وہ اسی طرح پرفارمنس جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں اسکول کے لیے کہ آگے دن جگنی رات کامیابی حاصل کریں، بچے بھی کامیاب ہوں، اور نہ صرف اسکول کا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں۔ بہت بہت تھینک یو سر۔ بس فوسٹر پبلک اسکول لیاری کے سوسائٹی کے لیے پچھلے 17 سال سے ایجوکیشن سیکٹر میں یہ اسکول کام کر رہا ہے، اپنے سروسز دے رہا ہے ناصر بلوچ کی قیادت میں۔ آج کی یہ تقریب دیکھی ماشاءاللہ پھر ایک بار حوصلے بلند ہوئے، اور یہ اچھا لگا کہ جی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکولز اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں اور بچوں کو ایوارڈز دے کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس طرح کے پروگرامز نہ صرف ہونے چاہیے بلکہ اس کا بہتر سے بہتر انتظام یا انعقاد ممکن ہو سکے تو ان اسکولز کو ہم سب نے مل کر کرنا ہوگا۔ اس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ جن بچوں کی پوزیشنز آتی ہے، جن کو فلائنگ کلرز ملتے ہیں، ان کو تو ایوارڈز ملتا ہے، لیکن ان بچوں کو بھی مایوس نہیں ہونے چاہیے جن کو ایوارڈز نہیں ملے لیکن انہوں نے پرفارم بہتر کیا، گریڈز ان کے اچھے آئے۔ میری ذاتی رائے یہ کہ یہ نمبر گیم ہے، پیرنٹس کو اور اسکول انتظامیہ کو یا ہماری کمیونٹی کو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کلاس کے ہر بچہ ایک اچھا بچہ تصور ہو اور اس کی اتنی اپریسیشن ہو۔ اگر ہم ان کو اس طرح کلاسیفائی کریں گے، 1-2 بچے باہر نکالیں گے تو باقی بچوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ بچے بھی اتنے ہی قابل داد و قابل تحسین ہیں جن کے مارکس اچھے آئے ہیں، وہ کہ انہوں نے پوزیشن حاصل نہیں کی۔ یہ لیاری ہے کیونکہ میرا گھر ہے، کیونکہ ہم پورے کراچی سطح میں جاتے ہیں مختلف اسکول کے ایونٹ میں، کیونکہ لیاری ایک مختلف علاقہ ہے، اور خاص طور پر یہاں کے جو بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے
वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट, यानी पूरा ओवरऑल कराची से। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर नासिर को, और इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया। और आज का जो दिन है वो बच्चों का, हमेशा मैं कहता हूँ वो ईद का दिन होता है, और नासिर को मैं स्पेशली थैंक कहता हूँ कि हमेशा वो जब भी प्रोग्राम करते हैं वो टोटली डिफरेंट प्रोग्राम रखते हैं। और इस हवाले से जो आज का जो दिन है वो ईद का दिन है, वो पेरेंट्स के लिए खुशी का दिन है, बच्चों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि हम सब मिलकर नासिर, क्योंकि मैं बचपन से यानी 20 साल से नासिर को जानता हूँ, वो बिल्कुल एक क्रिएटिव माइंड पर्सन है। ये हमारे बच्चे हैं, लियारी के बच्चे, टीचर भी हमारे ही हैं, हमारे ही बच्चे हैं, और स्कूल भी हमारा है। गवर्नमेंट का स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, ये सारे लोगों का एक ही मिशन होना चाहिए, बच्चों को इल्म देना, तालीम देना। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से ये स्कूल काम कर रहे हैं, जिन नामसादा हालात में काम कर रहे हैं, यहाँ लियारी में स्कूलों की फ़ीसें भी बहुत कम हैं और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम सब ने मिल के ये करना है। तो मैं फोस्टर पब्लिक के नासिर साहब को और इसी तरह से जितने भी यहाँ स्कूल हैं लियारी के, उन सब के मालिकान को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बहुत ही कम वसाइल में इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में वसाइल भी बहुत हैं, स्कूल भी बड़े बड़े हैं, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं ये लोग। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और मुझे लगता है कि लियारी में जितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला को हुक्म है कि हमें पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए, तो मैं भी उसी को ही फॉलो करूँगा। मैं भी कहूँगा अपने बच्चों से कि बग़ैर इल्म के आप आगे नहीं जा सकते। ये दुनिया अगर आगे जाएगी तो उसी इल्म की बुनियाद पर जाएगी जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमारे दिलो दिमाग में बहुत कुछ है, उसको उजागर करने के लिए अपने उस्तादों की खिदमत करें, अपने उस्तादों का कहना मानें और पढ़ें, इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह इल्म से ही तरक्की मिलेगी हमें। लियारी में जो प्राइवेट स्कूल है इनका आपस में एक मुकाबला है। उस मुकाबले में जो इदारे हैं, प्राइवेट जो स्कूल है, उन इदारों में नंबर 1 में नासिर भाई का स्कूल आता है। एक तो उसके स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, और एक ये जो अमल है असातिज़ा को इज़्ज़त देना और उनको इनामात से नवाज, ये बहुत बड़ा अच्छा अमल है, क्योंकि उस्ताद ही माशरे को बनाता है और उस्ताद को और तो कुछ तमगा नहीं मिलता, यही इज़्ज़त है उसकी। और ये जो अमल किया है नासिर भाई ने, मैं इसको बहुत सराहता हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई, चूँकि मैं खुद भी गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा असल मोटो यही है कि उस्ताद को इज़्ज़त दो, उस्ताद को आगे लाएं, और उस्ताद चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट का, उस्ताद तो उस्ताद ही है। मैं इस कामयाब और अच्छे प्रोग्राम पर इस स्कूल की इंतज़ामिया और नासिर भाई और तमाम असातिज़ा कराम को और आप मीडिया वालों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। आज की ये जो पुरवकार और शानदार जो तकरीब मुनक़िद की गई है फोस्टर पब्लिक स्कूल की तरफ से, इसके रूए रवां जनाब नासिर बलोच साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये एक बेहतरीन तकरीब थी जिसमें तमाम तलबा ने बेहतरीन अंदाज में पार्टिसिपेट किया और अच्छे अंदाज में टेबलोस पेश किए, अच्छी परफॉर्मेंस दी। ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि उनके असातिज़ा कराम ने भी बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि प्रोग्राम आखिर तक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिसिप्लिन था। और एक मरतबा फिर मैं नासिर बलोच साहब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमें भी इज़्ज़त अफजाई दी और गेस्ट ऑफ ऑनर का एजाज़ दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। फोस्टर पब्लिक स्कूल का आज सालाना प्रोग्राम था। बच्चों ने काफ़ी अच्छे टैबलोस दिखाए और काफ़ी अच्छा माहौल था। यहाँ पे पेरेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और मेहमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करना खासकर लियारी के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरह के प्रोग्रामों से बच्चों के टैलेंट को उजागर करने का मौका मिलेगा और बच्चों में ये हिम्मत पैदा होगी कि आइंदा भी वो अपने टैलेंट को उजागर करने की कोशिश करेंगे और पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वेल डिसिप्लिन प्रोग्राम था। उम्मीद है कि दूसरे स्कूल भी इसी तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करते रहेंगे बच्चों की हौसला अफजाई की। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे हमारे पास आए। आज हमारा प्रोग्राम आपने प्रोग्राम में चांद लगाया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
सारे टीम का जो यहाँ पे प्रिंसिपल वगैरह हैं और उनका जिन्होंने हमें एप्रिसिएशन अवार्ड वगैरह में शील्ड वगैरह दिए, सर नासिर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर की वजह आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। पलक न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इंटरव्यू मुझसे लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये प्रोग्राम असल में बच्चों के हवाले से होता है। एक तरह से इनके लिए एक ईद का दिन होता है, एक मैसेज जाता है इन बच्चों में, उन बच्चों में भी मैसेज चला जाता है जो बिलपर्स कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं। वो बिल्कुल इसी तरह लगन से, मेहनत से कोशिश करते हैं, जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं। और वो ये समझते हैं कि आज अगर हमें शील्ड नहीं मिले हैं, आज हमें इनामात नहीं मिले हैं, तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश से, मेहनत से वो हासिल करके रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक ताल्लुक़ है इन बच्चों का, इनके लिए जो हम प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, इतने सारे माशाल्लाह गेस्ट आते हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स आते हैं, बाकी हमारे असातिज़ा आते हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए। ये इनके लिए एक एजाज़ होता है। तो एक तरह से उनमें एक अप्रिसिएशन करने के बाद उनमें एक हौसला पैदा होता है, एक जज्बा पैदा होता है। यही चीज़ें इनमें कॉन्फिडेंट पैदा करती हैं और आगे चलकर इसी कॉन्फिडेंट को लेकर जब ये आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल में वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मेरे ख्याल में वो कोई इनको रोक नहीं सकता और वो अपने इलाके, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। यही बच्चे होते हैं। अगर हम ये सिलसिला कंटिन्यू करते हैं अप्रिसिएशन का बच्चों को, मेरे ख्याल में एक स्कूल के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं होता। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अपने बच्चों को एनुअल फंक्शन में अप्रिशिएट करना। और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर हम कोशिश ये करते हैं कुछ टैबलोज, वो टैबलोज जिनके मकासद होते हैं, हम कोशिश करते हैं उन टैबलोज को पेश करें और इस हवाले से उन बच्चों में, उन पेरेंट में अवेयरनेस पैदा हो मुख्तलिफ़ किस्म की। जैसे हम टैबलेट्स यहाँ पर बच्चों के ज़रिए देखते हैं, बच्चे तैयारी वगैरह करवाते हैं, टीचर्स वगैरह हम यहाँ पर इस स्टेज पे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम यहाँ इस स्टेज पर मौजूद हैं फोस्टर पब्लिक स्कूल एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत सारी टैबलोस की गए, जहाँ पर टीचर्स को अवार्ड दिया गया, जहाँ पर बच्चों को अप्रिशिएट किया गया, टीचर्स को अप्रिशिएट किया गया, पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया गया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम देखकर, इस स्कूल का प्रोग्राम देखकर मुझे अपना स्कूल याद आ गया। और जब टीचर्स को अप्रिशिएट किया जा रहा था, उनको अवार्ड दिया जा रहा था, तो मुझे मेरे टीचर्स याद आ रहे थे। और जब पेरेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा था तो मुझे मेरे पेरेंट्स याद आ रहे थे कि उनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ। मैं इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे इज्जत दी जा रही है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, अपने टीचर्स की वजह से मैं इस मकाम पर पहुँची हूँ। नाज़रीन, मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में तो बहुत इंजॉय किया है। फोस्टर पब्लिक एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोग्राम में मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बच्चों से पूछना चाहूँगी, इसी स्कूल के बच्चों से, कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन उन्होंने कितना एंजॉय किया ये हम पूछते हैं। एक हमारी फोस्टर पब्लिक स्कूल एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की एक बच्ची है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बच्ची, आपका नाम क्या है? आमना नूर। बच्चे, यहाँ पर मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, आपके स्कूल के इस प्रोग्राम को मैंने बहुत एंजॉय किया। आपने कितना एंजॉय किया वो आप अपने लफ्ज़ों में बताएंगी? हमने बहुत एंजॉय किया। हमने ये फाइनल जो हमारा फंक्शन हुआ था उसके लिए हमने बहुत मेहनत भी की थी। लगातार 1 मंथ से हम मेहनत कर रहे हैं और आज हम इस मकाम पर भी पहुंच गए। हमने अपनी मेहनत कामयाब कर ली, हमें बहुत मज़ा आया, तो थैंक यू। अच्छा बच्चे, आप मेरे साथ अपने टीचर्स को सलाम पेश करना चाहेंगी, क्योंकि मेरा दिल आज बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि मैं अपने टीचर्स को सलाम करूं। बिकॉज़ अभी तो मैं बहुत दूर हूं, अभी तो मैं नहीं जा सकती उनके पास, बट ये है कि मैं उनको मीडिया के थ्रू सलाम पेश करना चाहती हूँ। अच्छा, ये आमना नूर और मैं नूर, अपने टीचर्स को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।